Okay, so good morning, guys. Welcome to Fintopia. Let's have a look at it. What market did last week and how our algo strategies have fared. But before that, let's have a look at our disclaimer. So Fintopia is purely an educational channel, and it is otherwise. I am here to learn from you guys and provide an update on whatever I am doing. So wherever you guys feel that I need to improve and change my course, feel free to put a comment and I will have a look at it. This is definitely not an investment advice. I am not a SEBI registered advisor. Markets do carry risk. We all know that prices go up and down. Depending upon where we sit, we can make losses. Past performance is, of course, not a promise for the future performance. So if Algo has created a return of 60% annualized in last year, doesn't mean it will create the same because markets move differently different times. Always do your own research, consult a financial SEBI registered financial advisor before making any financial decision. So if we look at the Nifty, right? So this particular support I had drawn for some time now. It has given a gap up, gone up, right? Closed with a red candle, again gone up, went little bit up, and came down because of Accenture news. We all know. But it has taken a support from this particular line. If you see in past also we have gone up from this particular line, right? So this seems to be a good one, and personally I am a little, what do you say, positive for the next week. But any which ways, as I always say, that we do not try to predict the market but we try to chase them, right? In here also if we see, there was a resistance from this particular line, and I'm sure there will be other precedents as well. Yeah, so you will see a lot of action around this particular zone, not the line, but zone. So this is what it is. This is how Nifty looks like. I think we are on a crucial juncture and we should be able to make a decent move next week. Okay. IV, as you guys can see, IV is in a downward trajectory on a daily basis. Friday, because of all that wiggly movement, हमें आईवी जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मिला और ग्रीन में क्लोज हुआ है आईवी, लेकिन मुझे लग रहा है ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा या यहीं आसपास रहेगा। यूएस विक्स अगर आप देखेंगे तो 16 के आसपास है, 16 से 17 के बीच में है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहां यूएस विक्स नॉर्मली रहता है। तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ऐसा मार्केट में लग नहीं रहा है। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है और ये जोन अगर तोड़ के नीचे जाता है तो हमें एक इम्पॉर्टेंट ये मिल जाएगा, मोमेंट डाउन साइड मिल सकता है, बराबर है। ये पर्टिकुलर जो जोन है यहाँ थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर टुवर्ड्स ईयर एंड 80 वाले रेंज में आ जाएगा, समवेयर बिटवीन 84 टू 82 वाले रेंज में आना चाहिए, लेकिन देखते हैं, प्रिडिक्ट तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी, ये गिफ्ट निफ्टी है और ये हमारा निफ्टी 50 का फ्यूचर्स है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे 24,090 का क्लोजिंग बता रहा है, लेकिन ये डेली बेसिस पे ऐसा दिख रहा है। अगर हम थोड़ा और ड्रिल डाउन करके अंदर जाएं तो हमें ये 2442 के आसपास का क्लोजिंग बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, लेकिन एनी विच वेज प्रिडिक्शन तो नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो वापस से इस सपोर्ट पे आके रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ये डब्लू तोड़ के हमने ये मूवमेंट दिया और अभी फिलहाल हम ये बड़े डब्लू फॉर्मेशन में है। ओवरऑल बैंकिंग में मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ।
और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। इनका मुझे लग रहा है जो ये स्लम्प था इतने दिनों से, काफ़ी छोटा 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 अगर आप स्लम्प देखेंगे हुआ था, वो मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रहा है एंड हमको इजीली अच्छा मूव और एटीएस को तोड़ता हुआ मूव इस साल मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद इसके बेस पे ट्रेड नहीं करता। सेंसेक्स भी निफ्टी के जैसे ही है, इस पर्टिकुलर डब्लू के इधर सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ने थोड़ा सपोर्ट लिया है इस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन ये कोई सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है अगर हम देखेंगे तो। बराबर है, यह इतना कुछ सिग्निफिकेंट एरिया नहीं दिख रहा है जहां से हम बोल सके डेफिनेटिवली कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा। तो देखते हैं, फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर 3 कैंडल का बना है ये सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी नीचे जा सकता है। अगर हम इसको थोड़ा ड्रिल डाउन करें तो ये पर्टिकुलर जोन जो है एक सिग्निफिकेंट सेलिंग पॉइंट है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक हो सकता है जाए और वहाँ से रिजेक्शन लेके गिरे। ये कौन सा जोन है? ये 7400 का जोन है, बराबर है। 7400 से 7530 का जोन है ये। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर नीचे गिरे। ये कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है। बीटीसी ने पॉजिटिव मूवमेंट दिए हुए हैं, बराबर है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जो चल रही है? क्या है? अच्छा, ये ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन नीचे आया काफ़ी शार्पली, सपोर्ट लिया है और ये जोन में ये सपोर्ट ऐसा लग रहा है कि ले रहा है, बराबर है। तो सपोर्ट का जोन जो है वही 59,000 से 61,000 के आसपास है, तो दैट इज़ अ गुड एरिया। इस पे आप अगर पहले भी देखेंगे तो बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएं तो हमें दिखेगा कि बिटकॉइन ने यहाँ से काफ़ी सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये सपोर्ट लगभग 2024 से इफ़ेक्टिव है, जहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट लेके जाता है। तो इतना इजी तो नहीं होगा ये तोड़ना। ये पूरा पूरा जोन है 48,000 तक, 49,000 तक, सॉरी, 61 से। अगर ये तोड़ेगा तो हमें सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड मूवमेंट मिल सकता है जो होगा 39,000 तक। तो अगर 3 दिन के चार्ट पर देखें तो यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जहाँ पे इस हायर हाई के स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए हमने लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया है, बराबर है। तो फिलहाल बिटकॉइन बुलिश तो नहीं है, लेकिन यहाँ होल्ड करके थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है। ईथ की स्टोरी भी लगभग सिमिलर है। आप देखेंगे तो इक्वल हाइज बना के, यहाँ से इक्वल हाइज बना के फिर वापस से लोअर लो वाली ट्रेजेक्ट्री में आ गया है। और अगर यहाँ नहीं रुका तो ये जा सकता है 1200 के रेंज में, और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 376 के आसपास है। लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटा चार्ट रेफर नहीं करता क्योंकि मैं अल्गो ट्रेड करता हूँ और मैनुअल ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे हमने, आपको याद होगा, S&P में एक व्यू लिया था कि यह नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग 3 डेज का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये अभी भी यहाँ रेजिस्टेंस तो ले रहा है। अगर डेली पे आ जाए तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से यह अच्छा खासा नीचे जा सकता है। कहाँ तक जाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ से
S&P के नीचे जाने की है और उसके बाद फिर ऊपर की ट्रेजेक्टरी लेने की है। अभी आप वैसे भी जानते हो कि टेक सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है इवन इन यूएस। स्पेसएक्स ने कुछ $700 बिलियन शेड कर दिए अपनी लिस्टिंग के बाद से। तो $700 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो देखते हैं मतलब कि ये कैसे प्ले आउट होता है। हम गोल्ड को देखेंगे अगर, तो गोल्ड डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। इसमें हमने पकड़ा था इस कैंडल पे। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यही कैंडल रेड हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे से उसने रेड कैंडल बनाया और वहां से डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है। ओवरऑल इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये जो बुलिश मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल ये अपने लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट जो कि नवंबर 25 से फॉर्म हुआ है उसके आसपास है। अगर यह टूटता है तो यह 33 वाले जोन में जा सकता है और सेटल हो सकता है गोल्ड। लेकिन गोल्ड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ भी है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि सेंट्रल बैंकर्स अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड लगभग 5 से 10 साल तक खरीदा ही जाएगा उनके द्वारा और यूएस डॉलर कम किया जाएगा। तो उस सिनारियो में गोल्ड ऊपर भी जा सकता है। तो गोल्ड में सिर्फ टेक्निकल्स नहीं प्ले करेंगे, गोल्ड में ग्लोबल इवेंट्स, सेंट्रल बैंकर्स, फाइनेंशियल मार्केट सब कुछ प्ले करेगा। तो हमें बहुत सावधानी से गोल्ड की तरफ देखना चाहिए। डाउ जोन्स भी नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है, बराबर है, लेकिन अभी मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ डाउ जोन्स के लिए। ये अभी तक डबल टॉप जैसा लग तो नहीं रहा है, थोड़ा अलग है, बराबर है। इस कैंडल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे मैं ट्रेड नहीं करता यूएस मार्केट में क्योंकि हमें अलाउड नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस रख के। नेचुरल गैस, जैसे कि हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि नेचुरल गैस एक कंसोलिडेशन फेज में है और ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर मान लीजिए 323 का जो जोन है, अगर वो उसके ऊपर नेचुरल गैस ने क्लोजर दिया तो हम काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। तो हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया प्राइस एक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस एंड कमोडिटीज एंड बिटकॉइन, क्रिप्टो वी ट्रैक। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो फ्राइडे को काफ़ी उठा पटक वाला मार्केट था। अगर आप देखेंगे तो जो भी ग्रीन मूव हुआ है वो लास्ट के 15 मिनट में हुआ है, बराबर है। यहीं आपको काफ़ी वॉल्यूम भी मिल जाएंगे, बराबर है। और ये अगर वॉल्यूम वाइज दूसरे दिनों से कंपेयर करेंगे यहाँ पर निफ्टी को, तो आपको अबव एवरेज मिलेगा, बराबर है। आपको अबव एवरेज वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है बाकी दिनों के मुकाबले। इसके पहले सिर्फ जो हाईएस्ट वॉल्यूम था, आपको याद होगा, MPCI बोलते हैं ना उसको, रीबैलेंसिंग के टाइम पे जब FII ने जम के बेचा था इंडियन मार्केट में। तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक निफ्टी को ग्रीन में, लेकिन देखते हैं। स्मार्ट डायरेक्शनल ने अपना थोड़ा प्रॉफिट खोया है, लगभग 20-30 हज़ार के आसपास नीचे आ गया है ये फ्राइडे के दिन, क्योंकि काफ़ी फ्लिप फ्लॉप हुआ था। निफ्टी अर्नर 9,000 के प्रॉफिट से 81,000 के लॉस में आ गया है और ये अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 दिन से ट्रेड कर रहा है, बराबर है। रिकवरी अभी तक नहीं आ पाई है निफ्टी में। निफ्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है कि आईटी और बैंक्स आपस में फाइट कर रहे हैं, इसलिए निफ्टी कभी ऊपर जा रहा है वायलेंटली और कभी नीचे आ रहा है वायलेंटली। इन दोनों को कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी में एक सस्टेन्ड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स थोड़े क्लीनर हैं, इसलिए हम वहाँ प्रॉफिट्स भी कैप्चर कर पा रहे हैं अच्छे से। और आप देखेंगे तो इसमें भी हमने फ्राइडे थोड़ा सा लॉस किया हुआ है,
लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में है। अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स को हम स्टडी करें तो ये लगभग 9 दिन से ट्रेड कर रहा है और इसके स्टैट्स ठीक ठाक हैं। अभी बहुत जल्दी है इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ स्टैट्स में। एक बार 1 महीना 1.5 महीना होने के बाद हम लोग इसके स्टैट्स डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे। सेंसेक्स स्नाइपर नो डाउट इतना उठक के पटक के बाद पिछले पूरे हफ्ते में नेगेटिव ही रहा है। तो देखते हैं, ये पूरा नेगेटिव ही आपको इसका चार्ट पैटर्न तो रिटर्न इक्विटी कर्व दिखेगा, लेकिन मुझे इससे उम्मीदें अच्छी हैं। तो देखते हैं। सेंसेक्स स्नाइपर क्रेडिट स्प्रेड जो है ये भी फिलहाल तो नेगेटिव में ही है, लेकिन देखते हैं ये कितने दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर देखें तो ये लगभग 5 दिन से ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। और सेंसेक्स स्नाइपर भी 5 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो एक ही दिन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक एक लॉट पे इसमें ज़्यादा लॉसेस हैं और इसमें कम लॉसेस हैं, लेकिन इसके प्रॉफिट्स भी कम होंगे और इसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा इसको। हमारी स्टॉक स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। 70,000 के प्रॉफिट से हम 45,000 के प्रॉफिट पे आ गए हैं। और इसमें एक टेक्निकल ग्लिच भी है। रिलायंस का ट्रेड ट्रिगर हुआ था, लेकिन ट्रेडट्रॉन में कुछ इशू है, इसलिए रिलायंस का ट्रेड इफेक्ट में नहीं आ पाया। तो मैं उसके लिए टेक्निकल टीम से फॉलो अप कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मंडे तक वो लोग रिवर्ट करेंगे। अगर आप ट्रेडट्रॉन के भरोसे कुछ करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू डेवलप योर ओन स्किल। ट्रेडट्रॉन से जो भी रेस्पॉन्सेस या सपोर्ट आता है बहुत स्लो है। दे आर वेरी वेरी स्लो और बहुत बार तो इरेलेवेंट बातें करते हैं। एक सीधी बात करने के लिए पूरा का पूरा दिन, कभी कभी हफ्ते निकल जाते हैं ट्रेडट्रॉन टीम के साथ। उन्हें इस बारे में कुछ सोचना और करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस का ट्रेड ट्रिगर हुआ है, लेकिन वह दिख नहीं रहा। रिलायंस का ट्रेड दोनों ट्रिगर हुआ है, लेकिन उसने ट्रेड लिया नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है ट्रेडट्रॉन को थोड़ा अपना फीड वगैरह ठीक करना चाहिए और उसकी तरफ प्रॉपर एक ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट डायरेक्शनल सेंसेक्स ये 9,000 के प्रॉफिट से 3,000 के प्रॉफिट से 9,000 के लॉस में आ गया है, लेकिन ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि आई थिंक वी विल बी ऑल राइट एंड ओवरऑल जैसे ही मार्केट एक डायरेक्शन लेगा हम अच्छा पैसा कमाएंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि निफ्टी कहीं और जा रहा है, बैंक निफ्टी कहीं और जा रहा है, स्टॉक्स कहीं और जा रहे हैं। सब थोड़े से सिंक्रोनाइज नहीं है, लेकिन मुझे ओवरऑल लग रहा है कि प्रॉफिट्स हो जाएंगे। हमारी ऐसी स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं जो हम ट्रैक कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त की स्ट्रैटेजी है जो अच्छी चलेगी, आई एम वेरी श्योर। नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी हमारी सही नहीं चल रही है, इसमें हम लॉसेस कर रहे हैं, तो इसको अपग्रेड करने का प्लान है। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से निकल के हम इसको थोड़ा ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में डालेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। सेंसेक्स स्नाइपर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। यहाँ भी आप देखेंगे तो रिलायंस का ट्रेड छूट गया है, बल्कि सिग्नल आया हुआ है। तो ट्रेडट्रॉन टीम को इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये इसका भी जो है प्रॉफिट जो है 1.20 के आसपास जाके 95 पर सेटल हुआ है। ये ब्लॉक्ड है, इसका प्रॉब्लम हमें मिल गया है, उसका करेक्शन भी हो गया, इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ इसको रीडिप्लॉय। सेंसेक्स का भी वही स्टोरी है, 30,000 के प्रॉफिट से ये 16,000 के लॉस में आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छा ट्रेड
होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग फिनटोपिया। आपके कमेंट्स जो हैं या इम्प्रूवमेंट सजेशंस जो हैं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो थोड़ा रिलायबल हो ट्रेड्रॉन से ज़्यादा आपको लगता है तो सजेस्ट कीजिए कमेंट में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।